Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning. In a previous class, we have already started this lesson, uh, lesson number 3 of geography, and we have reached Yes. the topic earthquake hits Bhuj. We have already discussed about this massive earthquake, what all Yes. destruction was made in the region of Bhuj, which is in Gujarat. Then now we will read about do you know, and then we'll continue the lesson. Okay. So Okay, ma'am. an earthquake is measured with the machine called seismograph. Underline this, to measure the earthquake. What is the machine? Seismograph. Seismograph is the Seismographic seismograph is the machine to machine. measure the earthquake. Very good. To measure the earthquake. Then the magnitude of the earthquake. The magnitude means the size. The size of the earthquake is measured on the Richter scale. रिचर स्केल भी बोलते हैं, कोई कोई इसको रिक्टर स्केल भी बोलते हैं. सो द मैग्नीट्यूड मीन्स साइज या एक्सटेंट, कितने एक्सटेंट तक वो अर्थक्वेक रहा, कितना स्ट्रेच रहा उसका, तो वो मेजर किया जाता है रिचर स्केल. Richards. क्लियर? An earthquake of uh, 2.0 or less can be felt only a little, means थोड़ा 2.0 अगर रिचर स्केल पे नापा जाए तो ये बहुत ही स्लो मूवमेंट होगा इनसाइड द अर्थ, एंड वी कैन नॉट feel also that the vibration in the earth. An earthquake over 5.0 can cause damage, और अगर 5.0 तक अगर earthquake चला जाता है, इसका vibration movement आ जाता है, तो it can cause damage from things falling. मीन्स वो वाइब्रेशन अर्थ में मूवमेंट होने लगता है, तो उसके वाइब्रेशन से क्या चीजें गिरने लगती है और इससे डैमेज हो सकता है. एंड 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड, या 6.0 या इससे जो ज्यादा अगर मेजर किया गया, दैट इज 7.0, तो ये ज्यादा मेजर अर्थक्वेक होते हैं जो कि लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन करते हैं. क्लियर? इससे जान और माल दोनों का नुकसान होता है. थिंग्स ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉयड, बिल्डिंग्स गेट डिस्ट्रॉयड, प्लस लाइफ ऑल्सो, लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, human beings, animals and all get destroyed due to the high magnitude of earthquake. Clear? That is 6.0 and above. Now, how can we be prepared with this earthquake preparedness? हम फ्यूचर में पता नहीं लगा सकते कि अर्थक्वेक कब होगा, बट वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड टू फेस ऑल दीज नेचुरल डिजास्टर्स, so that less and less harm can be made to human beings as well as to the things. So what all earthquake preparedness measures should be taken? We should take shelter during an earthquake. अब earthquake में हमें shelter कहाँ देखना चाहिए? Safe spot पे. Number one, now this is very important, you can underline this, the earthquake measures. First is we have to find the safe spot. And now safe spot, where will it be? जैसे ही हमें थोड़ा सा वाइब्रेशन लगने लगता है, we should go under the kitchen counter, table or desk, against the inside corner or a wall. And then we have to stay away. The second, we should keep in mind that whenever we feel the earthquake, we should stay away. Stay away, कहाँ से stay away करना चाहिए हमें? Stay away from the, Fireplace. very good, fireplace. Fireplace means जहाँ पर आग लग रही है, अगर हम लोग खाना वगैरह बना रहे हैं या कहीं पर फायर वगैरह लगी, तो वहां से हमें थोड़ा सा दूर हट जाना चाहिए. देन एरियाज अराउंड चिमनी, चिमनी के अराउंड भी हमें नहीं रहना चाहिए. विंडो दैट शैटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स, कोई पिक्चर फ्रेम्स है या विंडोज है जो शैटर के रूप में है, कि जैसे उसमें वी कैन से ग्लास विंडोज है या शैटर में बंद होती है एकदम से ठक देने से, तो उस इन ऐसी जगहों से हमें अपने आप को बचा कर रखना चाहिए जब अर्थक्वेक आता है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर हम खड़े रहेंगे तो वी विल बी हार्म्ड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन, हमें ज्यादा नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है. देन थर्ड इज बी प्रिपेयर्ड. बी प्रिपेयर्ड मीन्स spread awareness among your friends and family members. हमें अवेयरनेस अवेयर करना है लोगों को about the preventive measures for the earthquake.
हमें स्प्रेड करनी है अवेयरनेस कि हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। हम रोक नहीं सकते अर्थक्वेक, बट हम अपने नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो इस बारे में हमें लोगों को जागरूक बनाना है, जागरूकता देनी है। इवन हमारे फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स, इनको हमारे इन सब के बारे में हमें जितना हमें नॉलेज हमें बताना चाहिए, ताकि वो भी अपनी लाइफ और अपनी थिंग्स सेव कर सके, एंड दे कैन फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। और कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है उसको वो कॉन्फिडेंटली फेस कर सके। क्लियर? नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ अ सिस्मोग्राफ. Now coming to the next topic, the major landforms. Now what does the word landforms means? Landforms means landforms या landscape, one and the same thing. लैंड्स पे रहने वाली चीजें। हाँ हाँ हाँ, जैसे लैंडस्केप या लैंड फॉर्म्स, व्हाट फॉर्म्स द लैंड। क्या फॉर्म करता है लैंड? माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, हिल्स, लेक्स, Yes, स्ट्रीम्स। sir. ये क्या है? एक तरीके के फॉर्म्स ऑफ लैंड है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड। कहीं पर Land. प्लेन है, कहीं पर हिली एरिया है, कहीं पर लेक है, कहीं पर स्ट्रीम्स है। तो इस टाइप से दीज आर द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, और वी कैन से दीज ऑल इंक्लूड्स इन अ लैंडस्केप. Clear? So a landscape is being continuously worn away by two processes. Worn away means it is disappearing. Landscape is continuously disappearing or becoming thinner or becoming smaller with the two processes. दो special processes हैं जिसकी वजह से हमारे लैंडफॉर्म को, लैंडस्केप को हार्म हो रही है. वो क्या दो प्रॉब्लम्स हैं? वेदरिंग एंड इरोजन, है ना? तो इरोजन आई हैड ऑलरेडी डिस्कस इन अर्लियर. इरोजन क्या है? कैरिंग अवे ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द अपर लेयर ऑफ द Land. लैंड, है ना? लैंड। हाँ, तो Yes, ये हमने yes. पहले ही डिस्कस कर दिया ना. व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पे जो रॉक्स हैं वो ड्यू टू द वर्क ऑफ विंड, वाटर, आइस, ये क्या ब्रेक होने लगती हैं. तो ये ब्रेक होने को क्या बोलते हैं? वेदरिंग. Weather. Clear? And then erosion. Erosion is a wearing away of landscape. Erosion is the wearing away of landscape. Means ऊपर की जो लेयर है वो एक तरीके से डिसअपेयर हो रही है. Wearing means worn or wearing, one and the same word meaning. एक तरीके से डिसअपेयर हो रही है, कैरिड अवे हो रही है. किसके एजेंट्स, कौन कौन से एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल है लैंडस्केप हटाने के लिए? वाटर, विंड एंड आइस. Clear? You can underline this, the definition of weathering and the definition of erosion. इरोजन। Which are लैंडस्केप में वाटर भी आता है. landscape में पूरा water bodies. Yeah, water bodies includes landscape. Now, which are the agents, main agents of erosion? Agents of erosion किससे अपर लेयर कैरिड अवे होती है लैंडस्केप की? एजेंट्स ऑफ इरोजन. Water. वाटर, विंड एंड आइस। This we have already just now read that different agents of erosion are water, wind and ice. Water, wind, and ice. जो वाटर, विंड एंड आइस। वाटर और विंड और आइस की जो स्पीड होती है, आइस इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स. तो जैसे ये स्पीड पकड़ता है तो इसके साथ अपर लेयर आप फ्लू होने लगती है, और जब वो आपस में उड़ करके जब दूसरी जगह पर सेटल डाउन हो जाती है तो मैंने आपको बताया इट इज द फॉर्म ऑफ deposition, that is deposited somewhere else. So the eroded material means whatever carried away the upper part of the land, the sand, the silt, the clay, whatever the part of the layer of the upper part of the land is there, it is carried away or transported. ट्रांसपोर्ट किया जाता है किससे? वाटर एंड विंड एटसेट्रा. एटसेट्रा में यहाँ आ गया आइस इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, एंड इवेंचुअली डेपोजिटेड. और इवेंचुअली मीन्स धीरे धीरे कहाँ होता है? वो डिपॉजिट होने लगता है, एक जगह से कैरी अवे होकर दूसरी जगह इकट्ठा होने लगता है. Now this process of erosion and deposition creates different landforms on the surface of the earth. और ये जो इरोजन और डिपोजिशन का वर्क है लैंडफॉर्म पे जो हो रहा है, एक जगह से सैंड, सिल्ट, क्ले वगैरह जो भी है
ग्रेन्स ये कैरी अवे होते हैं और दूसरी जगह डिपॉजिट होते हैं, तो दिस क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। इससे क्या डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएशन हो जाता है। अब ये कैसे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, वी विल रीड इन द कमिंग पार्ट ऑफ द लेसन। क्लियर? बिफोर दैट we'll read about, do you know there are thousands of small waterfalls? How many waterfalls are there? Thousands of small waterfalls in the earth. Now, first, the highest waterfall is Angel Falls. Underline this. The highest waterfall is Angel Falls, and that is where? That is located in Venezuela. South America. In South America, where is in South America, which place? Venezuela place. Venezuela. Yeah. This is the highest waterfall. Now other waterfalls are also there. That is Nigeria Falls. Second waterfall, they are giving knowledge about Nigeria Falls. Now it is located on the border between Canada and USA. Canada और USA जो है उसके border पे ये Nigeria Falls है. Now another third waterfall is Victoria Falls. It is in North America. Zambia, South America. in Africa. Africa. Clear? So these are the three main waterfalls the information is given about. But the highest waterfall is Angel Falls, which is in Angel Falls, America. Venezuela, South America. Very good. Then now coming up again on the chapter about the work of the river. Work of the river means we are just now discussing about the different landforms which are created on the earth's surface due to the work of water, wind and ice. वाटर, विंड और आइस से कैसे नए नए लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं ये अब हम पढ़ेंगे. नाउ वर्क ऑफ द रिवर. वर्क ऑफ द रिवर मींस वर्क ऑफ द वाटर. व्हेन द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप. जब रनिंग वाटर, फ्लोइंग वाटर जब बहता है, बहता पानी क्या करता है? इरोड करता है लैंडस्केप. इरोड मींस इट कैरीज अवे, है ना, कैरीज अवे द लैंडस्केप. जो भी लैंडस्केप उसके साथ जो भी ऊपर का लेयर आता है वो इरोड. इरोड मींस एक तरीके से वी कैन से ब्रेक करता हुआ चलता है. व्हेन द रिवर ट्रम्बल्स एट द स्टीप एंजल्स. अब ये रिवर बह रही है, ठीक है ना, नदी बह रही है, नदी बहते बहते सीधा बह रही है और उसके बाद बीच में क्या आता है? एक वैली आ जाती है या माउंटेन या स्टीप स्लोप आ जाती है, तो उससे वो क्या हो जाती है? नीचे टम्बलिंग होने लगता है. हाँ, स्लोप मिल जाता है, वो टम्बल डाउन होने लगती है. टम्बल डाउन मीन्स नीचे गिरने लगती है स्टीप एंगल से ओवर द हार्ड रॉक. हार्ड रॉक से वो स्टीप वैली में नीचे टम्बल डाउन होने लगती है और जब वो नीचे टम्बल डाउन होने लगती है दैट टेक्स द फॉर्म ऑफ वाटरफॉल. हम देखते हैं ना, अरे ऊपर इतनी ऊंचाई से हम कभी कभी हम घूमने जाते हैं तो हाँ, तो हम देखते हैं कि माउंटेन से, हिल से हम लोग देखते हैं कि अरे कितना अच्छा वाटरफॉल हो रहा है ना. तो वो वाटरफॉल वो कैसे हो रहा है? वो रिवर टम्बल्स डाउन कर रही है और बीच में उसके कोई वैली आ गई है या हार्ड रॉक आ गई, उससे वो उसको वे मिल गया है नीचे ब्रेक करके नीचे फॉल होने का, टम्बल करने का, इसीलिए वो वाटरफॉल का फॉर्म ले लिया है. तो फर्स्ट लैंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ द रिवर क्या हुआ? वाटर फ्लो हो रहा है, उसका क्या हो गया? वाटरफॉल. वाटरफॉल. ठीक है, आगे समझ में. अब ये आगे वाटरफॉल देखो कैसे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स में क्रिएट होता है. नाउ एज द रिवर एंटर्स द प्लेन. अब ये वाटरफॉल हुआ, वाटरफॉल होने के बाद यहाँ पर क्या, मान लो प्लेन एरिया आ गया, ठीक है ना. प्लेन एरिया मीन्स हिली या वैलीज कुछ भी नहीं है, ना रॉक्स है ना कुछ है, प्लेन एरिया है, फर्टाइल एरिया है. सो एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड. अब ये प्लेन एरिया में एंटर हो गया. अब ये क्या कर रहा है? जब इसको ब्रॉड एरिया मिल गया तो अब ये पानी अपनी मर्जी से बहेगा, तो इट स्टार्ट ट्विस्टिंग एंड टर्निंग. ट्विस्ट और टर्न कर रहा है ये, फॉर्मिंग द लार्ज बैंड्स. हाँ, और फॉर्मिंग द लार्ज बैंड्स. लार्ज बैंड्स फॉर्म कर रहा है. अब ये लार्ज बैंड जो फॉर्म कर रहा है इसको क्या बोलेंगे हम? मिएंडर. जो लार्ज फॉर्म बैंड कर रहा है उसे बोलेंगे मिएंडर.
Okay, fine. Now meander. Clear? So after the waterfall, when the river enters into the plain, first formation of the landscape is meander. Meander. क्लियर? मेंडर क्लियर? ये लार्ज लूप्स जो होते हैं, लार्ज बेंड्स जो होते हैं, उसे मेंडर कहते हैं जब वो ट्विस्ट एंड टर्न करती है. नाउ ड्यू टू द कंटिन्यूस इरोजन एंड डेपोजिशन, अब कंटिन्यूस इरोजन और डेपोजिशन रिवर फ्लो करी तो डेफिनेटली उसके साथ जो भी साथ में आ रहा है मटेरियल, सॉल्ट, सिल्ट, क्ले, ये सब साथ में लेकर बह रही है अपने साथ. तो और वो कहीं पर जाकर के क्या हो रहा है, डिपोजिट हो रहा है. कहीं पर जाकर के वो, जहां पर जैसे ही रिवर का फ्लो बेंड होता है तो रिवर का फ्लो कम हो जाता है, तो वहां पर वो डिपोजिट होने लगता है. क्लियर? सो ड्यू टू द कंटिन्यूस इरोजन एंड डेपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मिएंडर, यहाँ सीधा होता है तो तेज हो जाती है उसका फ्लो, रिवर का फ्लो, और जैसे ही उसको थोड़ा सा बेंड होना पड़ता है तो मे बी इन बेंडिंग थोड़ा सा वो फ्लो स्लो डाउन हो जाता है. स्लो डाउन होते ही क्या हो जाता है, जो भी उसके साथ बह रही है चीजें वो एक जगह इकट्ठा होने लगती है, दैट इज डिपोजिटिंग समवेयर. सो द एंड्स ऑफ द मिएंडर लूप्स कम क्लोजर एंड क्लोजर, और इससे क्या होता है, जब डिपोजिशन होने लगता है तो यहाँ पर सामान इकट्ठा होने लगता है, तो द एंड्स ऑफ द लूप्स कम क्लोजर एंड क्लोजर, पास में आने लगते हैं, छोटे होने लगता है इसका गैप बीच में. नाउ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मिएंडर लूप्स कट्स ऑफ, और थोड़े ही समय बाद हम देखते हैं कि जो मिएंडर लूप है ये एक तरीके से ये अलग हट जाता है, कट जाता है, बिकॉज ऑफ द इरोजन एंड डेपोजिशन. ज्यादा से ज्यादा डेपोजिशन होने लगता है तो ये एक तरीके से कट ऑफ हो जाता है कंटिन्यूस रिवर फ्लो से. तो इन ड्यू कोर्स द टाइम द मिएंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स क्या, अब दूसरा क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कट ऑफ लेक का. कट ऑफ लेक का, इसको कट ऑफ लेक को क्या बोलते हैं, एक तरीके ऑक्सबो लेक, एक तरीके से बो के रूप में हो गया ये कट ऑफ, क्योंकि ये ट्विस्ट एंड टर्न के कारण ये ऐसे एग्जैक्टली बो का रूप ले लिया, इसने फॉर्मेशन ले लिया, तो ये हो गया ऑक्सबो लेक. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक. क्लियर? Yes, ma'am. Okay, now Excuse Oxbow me, Lake ma'am. we have read about meanders. Clear? After Oxbow Lake, what happens at the times the river overflows the bank. अब कभी कभी रिवर बहते बहते इट ओवरफ्लोज द बैंक, ज्यादा ही पानी बहने, ज्यादा तेज बारिश होती है तो क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है. ओवरफ्लो हो जाता है तो क्या होगा, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लड. Flooding. फ्लड, वेरी गुड. सो Flood. दिस लीड्स टू फ्लड. जब ज्यादा पानी आने लगता है तो फ्लड की कंडीशन हो जाती है, एंड इट फ्लड्स, एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ द फाइन सॉइल. और जैसे ही फ्लड आता है तो उसकी जो फ्लड, जब ज्यादा पानी तेजी, वंशिका प्लीज कीप योर माइक ऑफ. तो ज्यादा तेज पानी से पानी के साथ क्या होता है, जो वो ऊपर की जो फाइन सॉइल होती है वो क्या डिपॉजिट होने लगती है, कहाँ पर, बैंक्स ऑफ द रिवर, नदी के किनारे. यस और नो? नदी बहती है, नदी के बाहर साइड में बैंक्स ऑफ द रिवर क्या, फाइन सॉल्ट सैंड आपको मिलती है देखने को. आप कभी भी जाते हो घूमने करने बीचेस वगैरह पे, तो वहां पर आप देखते होगे कि बीचेस से पहले, पानी में जाने से पहले कितनी फाइन सॉइल आपको देखने को मिलती है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर. यहाँ पर भी सेम थिंग है, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर as it floods it deposit layers of fine soil and other material called sediments along the banks, and this led to the formation of flood plain. और अब क्या बना है, Flood plain. फ्लड प्लेन बन गया है. ठीक है ना? फ्लड प्लेन कैसे बना है, ज्यादा पानी आने लगा, ज्यादा पानी से बैंक्स में क्या हो गया, एक तरीके से चिकनी मिट्टी सी आ गई है बैंक्स में. अब वो बैंक्स में जब वो चिकनी मिट्टी, फाइन सॉइल विद सेडिमेंट इज देयर, देन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ फ्लड प्लेन. प्लेन एरिया आएगा. द रेज्ड बैंक्स ऑफ द लीव्स, अब क्या है, साइडों में ज्यादा इकट्ठा होने लगता है, रेज्ड होने लगता है, सरफेस थोड़ा सा एलिवेटेड होने लगता है. एलिवेटेड मतलब थोड़ा सा ऊंचाई पे आने लगती है साइड की सरफेसेस. तो अब ये क्या फॉर्म ले लेता है, लीव्स का. किसका फॉर्मेशन होता है, लीव्स का. Leaves. क्लियर? इट इज कॉल्ड एज लीव्स, क्योंकि ये अलग हट करके जो बैंक्स में साइड में जो ज्यादा मिट्टी इकट्ठी हो जाती है वो इट इज कॉल्ड एज लीव्स. क्लियर? एज द रिवर अप्रोचेस द सी, और धीरे धीरे जैसे ही रिवर जो है वो बड़ी सी में अप्रोच करती है, पहुंचने लगती है,
द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस। अब इतनी दूर से वो बहती आ रही है रिवर, है ना, फ्लड प्लेन से होती हुई, तो वो क्या धीरे धीरे उसकी स्पीड, जैसे जैसे उस सी के नजदीक पहुंच रही है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, डिक्रीज हो रही है। वाटर फ्लोइंग डिक्रीजेस एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप। अब रिवर क्या होने लगती है, जब जैसे स्पीड ब्रेक स्लो होने लगती है तो वो क्या होने लगता है, उसका उसकी जो एक सिंगल जो पाथ में वो बह रही है, सिंगल वे में जो बह रही है, अब वो ब्रेक होने लगता है, ब्रेक इनटू द सेवरल अदर ब्रांचेस। छोटी छोटी स्ट्रीम्स के रूप में वो अब बहने लगती है, अलग अलग अपना वे लेने लगती है। जैसे कोई बहुत स्लो हो गई रिवर, तो यहाँ से उसको स्पेस मिली तो यहाँ से बहने लगा, थोड़ा पानी को यहाँ जगह मिली तो यहाँ से बहने लगी। तो इस वे में वो इट ब्रेक्स अप इनटू द नंबर ऑफ स्ट्रीम्स एंड दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ये जो Distributed. डिस्ट्रीब्यूट होगी ना रिवर, एक तरीके से रिवर जो मेन Yes, रिवर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, Yes, ma'am. then it is called as distributaries. Clear? तो river मैम हम हिस्ट्री में तो इसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। क्या हुआ बेटा? मैम हिस्ट्री में जब भी ये डिस्ट्रीब्यूटरी नाम आता है तब हम इस ट्रिब्यूटरी कहते हैं, मतलब हिस्ट्री में तो। अच्छा, here it is distributaries. The river becomes so slow. अब यहाँ पर इतनी स्लो हो जाती है रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिस्ट्रीब्यूट होकर के now it begins to deposit its लोड। जो भी अपने साथ वो पानी के साथ बह करके लाई है, अब वो एक जगह पर डिपॉजिट होने लगता है एक साथ इन अ कलेक्शन, एंड दैट फॉर्म्स ऑन द माउथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी। जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है उसका एक माउथ बन जाता है यहाँ पर, और ये एक तरीके से क्या फॉर्मेशन हो रहा है, डेल्टा। Delta. क्लियर? यहाँ पर जितना भी Yes. रिवर अपने साथ पानी में स्टार्टिंग से जो बहा के लेकर आई है और जो बच गया अब रिवर में, वो फाइनली कहाँ पर आकर सेटल डाउन होगा, सेडिमेंट के रूप में Delta. डेल्टा में। डेल्टा। क्लियर द फॉर्मेशन ऑफ रिवर, द वर्क ऑफ Yes, द। मैम। इतना पहले वाटरफॉल हुआ, मियंडर आया, ऑक्सबो लेक आया, ऑक्सबो लेक फिर फ्लड आ गया एकदम से ज्यादा पानी की बहाव से, तो फिर फ्लड प्लेन हो गया। देन फ्लड प्लेन से क्या हो गया, साइड में Leaves. ज्यादा डिपॉजिट्स हो गया तो लीव्स का फॉर्मेशन हो गया। देन जैसे वाटर स्लो हो गया तो इट Distributaries. हाँ इट into the distributaries, and finally whatever is the distributaries are collected in some one particular place Delta. of the delta. Clear? Now work of the Yes, sea waves. अब sea waves का क्या work है? The erosion and deposition of the sea waves gives rise to the coastal landforms. अब जो erosion and deposition है sea waves का, वो क्या rise करता है, coastal landforms को। Now sea waves continuously strike Coastal. at the Coastal line. yes, sea waves continuously strike the rocks. अब ये बीच बीच में sea waves में rocks आती है, तो अब ये rocks क्या continuously या waves क्या strike करती हैं, पानी की जो waves होती हैं वो कंटिन्यूसली एक जगह पर स्ट्राइक करेंगी। जब स्ट्राइक करेंगी कंटिन्यूसली एक जगह पर तो क्या होगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। Cracks develop. ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है कंटिन्यूस वेव्स का स्ट्राइक होता रहता है उस पर्टिकुलर रॉक पे, तो वो जो है क्रैक्स वो वाइड हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म, और क्या हो जाते हैं, एक केव्स के रूप में हॉलो हो जाता है, पूरा इधर से उधर तक वो हॉलो हो जाता है। देन इट इज कॉल्ड एज सी केव्स। किसका फॉर्मेशन हो जाता है ये, सी Sea केव्स। caves. यहाँ पर Caves. सी केव्स मीन्स यहाँ से हॉलो हो जाते हैं, पीछे मे बी पीछे जरा सा एक वी कैन से सपोर्टिव रॉक विल बी देयर, बट यहाँ से तो एकदम से वो हॉलो हो जाते हैं जैसे केव की जैसे। नाउ दीज ऑल दीज कैविटीज बिकम बिगर। अब जैसे जैसे टाइम पास होता है तो वो कैविटीज जो ये कैविटीज है ये बड़े होने लगते हैं, एंड देन फॉर्म्स द सी आर। फिर क्या, बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह पास होने की जगह हो जाती है वाटर को, इतना बड़ा होल हो जाता है रॉक्स में। देन इट फॉर्म्स द सी आर्क। Yeah. फर्दर इरोजन ब्रेक्स एंड रूफ ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। फिर क्या, पूरा इरोजन हो जाता है,
इरोजन हो जाता है मतलब धीरे धीरे पूरी तरीके से एकदम रॉक ब्रेक होने लगती है। और क्या सिर्फ रॉक बीच में से पूरी ब्रेक होने लगेगी, यहाँ से धीरे धीरे करती रहेगी, तो अब क्या होगा, ये अलग पोर्शन हो गया, ये अलग पोर्शन हो गया, है ना। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ stacks. Stack. It is in the form of stacks. Now the Stack. steep rocky coast rising almost vertical above the sea water is called sea cliff. और sea cliff कैसे फॉर्म होगा, जस्ट इसके just steep rocky coast, जो rocky coast just ऊपर above the sea water के above जो रॉक फॉर्मेशन बच जाएगा किसी भी तरीके से, तो उसको क्या बोलेंगे, सी क्लिफ। Sea cliff. तो सी वेव्स का क्या क्या है, सी केव्स, Sea caves. Yeah. Sea arch. Stack. stacks and Stacks. Sea And sea cliff. cliff. clear. Then Yes, ma'am. the sea waves deposit sediments along the shores from beaches. अब beaches के जो sediments जो भी sea waves से sediments आते हैं नदी के सॉरी ये सीज के बहाव से, तो waves आती हैं, waves किससे क्या होता है, शोर्स पे सेडिमेंट्स इकट्ठे होने लगते हैं। आप देखते हैं, आप लोग बीचेस में जाते हैं, देखते हैं कितना गंदगी और कितना जो भी पानी में गंदगी होती है वो वेव्स से क्या होता है, साइड में शोर्स पे इकट्ठा होने लगता है, दैट फॉर्म्स द बीचेस। क्लियर? मैम ये जो सीखे होती है मैम, यहाँ पे मैम पानी किसी भी तरीके से अगर मैम चला जाता है तो फिर मैम इसमें इतना बड़ा होल होता है कि मैम इसके अंदर से कोई जा पाए। यस, ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है, बट इट इज लिटिल risky also because continuous water flow is there. We don't know how thick, how thin the rock is, how much strong it is, है ना, कितना वो स्ट्रॉन्ग अभी भी है, क्योंकि पानी में रह करके वो वीकेंड से पत्थर भी गलने लगता है ना, हल्का हल्का चेंज होने लगता है। ओके, नाउ वर्क ऑफ आइस, a work of ice in the form of glaciers. Now what are glaciers? Glaciers are river of ice which to erode the landscape by bulldozing soil and stones, expose the soil solid rock below. अब solid rock जो नीचे होती है उसको वो क्या करते हैं, हिला देते हैं पूरे। बुलडोजिंग मीन्स एक तरीके से मूव कर देते हैं पूरा सॉइल और स्टोन्स, जो भी ग्लेशियर्स का जो रिवर ऑफ आइस जो होती है उसके नीचे जितना भी सॉइल है, जितना भी स्टोन है, वो एक तरीके से हिला देते हैं, वी कैन से। हाँ, ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप hollows. Glaciers carve out. मैम जिसके माइक से बहुत आवाज आ रही है। यस मैम, इसके माइक से आवाज आती है। Now glaciers carve out deep hollows. Glaciers से deep hollows बन जाते हैं as the ice melts. और जैसे जैसे ice melt होने लगती है, temperature rise होता है, तो ice will definitely melt. They get filled up. hollow होने लगता है बीच में, और फिर वो जो ice जब melt होने लगती है तो क्या होने लगता है, मेल्ट होएगी तो क्या उसमें पानी भरने लगेगा, वाटर बन जाएगी। वाटर बन जाएगी, उस वो हॉलोज में पानी भरने लगेगा, एंड इट बिकम्स ब्यूटीफुल लेक्स इन द फॉर्म ऑफ इन द माउंटेन्स में वो ब्यूटीफुल लेक्स बन जाएंगे। क्लियर? सो द मटेरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स, बैग एंड बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपोजिटेड। और उसमें क्या डिपोजिट होगा, स्मॉल बिग रॉक्स, सैंड, सिल्ट। सिल्ट मीन्स जो भी उसके साथ फर्टाइल सॉइल या जो भी ग्रेनुल्स है वो डिपॉजिट होने लगते हैं, एंड इट इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर। जब ये एक जगह डिपॉजिट होने लगती है तो इसको ग्लेशियर मोराइंस बोलते हैं। क्लियर? नाउ वर्क ऑफ विंड। Before continuing this, today I will upload the question answers of this lesson, and in our next class we will continue with the civics lesson number 3. Clear? Okay. Yes ma'am. Work of wind now. Have you ever visited a desert? जैसलमेर वगैरह गए हैं आप? Yes ma'am. Okay. Those who have visited, you might have seen that sand dunes. Sand dunes देखा होगा आपने? रेत के टीले बड़े बड़े। Yes ma'am. Yes. Yes, ma'am. This is what that sand dune is the work of wind only. Sand dune is the work of wind only. An active agent of erosion and deposition in sand desert is wind. Wind means fast flowing air. Fast flowing air से
जो इरोजन और डेपोजिशन होता है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है इरोजन एंड डेपोजिशन के लिए? फास्ट फ्लोइंग विंड. इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम. मशरूम के शेप में आप रॉक्स देखने को मिलेगा, कॉल्ड एज मशरूम रॉक, कॉमनली कॉल्ड एज Mushroom rocks. मशरूम रॉक. Mushroom rocks. winds erode the lower section of the rock. जो रॉक्स है उसका जो विंड जब बहती है तो उससे क्या वो लोअर सेक्शन जो नीचे का जो सेक्शन है वो इरोड करने लगती है, एक तरीके से खत्म करने लगती है, हटाने लगती है, ब्रेक करने लगती है रॉक्स का. और फिर क्या होता है ऊपर का पार्ट ही रहने लगता है. जब ये रॉक है, ठीक है ना, यहाँ पर ये विंड बहुत तेज बह रही है तो ये नीचे का पार्ट इरोड होने लगा, तो फिर क्या बचा? सिर्फ ऊपर का पार्ट ही बचा. और इरोड होते होते क्या है ये पोजीशन हो जाती है कि यहाँ से भी विंड बह रही है, यहाँ से भी विंड बह रही है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन रह जाता है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ मशरूम. क्लियर? Mushroom. Yes, ma'am. Okay. Then therefore the such rocks have narrower base. Base अभी मैंने बताया जैसे narrower base इस जगह and wider top. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. अब विंड जब बहती है तब वो सैंड अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह हवा में उड़ाते हुए लेके जाती है. When it stops blowing, the sand falls and get deposited in the low hills like structure. और जब वो deposit होती है तो एक तरीके से low hill formation बनता है. And these are called as sand dunes. और ये किसके फॉर्म में फॉर्मेशन होता है? Sand dunes के रूप में. Sand dune. And when the grains of sand are very fine and light, the wind carry it over very long distances. अब कभी कभी सैंड बहुत हल्की होती है, फाइन ग्रेन्स होते हैं तो वो ज्यादा दूरी तक लेकर जाती है अपने साथ विंड, ठीक है ना. Then when such sand is deposited in large areas, अब जब वो अपने साथ बहुत दूरी तक लेके जाती है, then it is called as loess. Loose. पास में ही अगर थोड़ी सी दूरी पे ही इकट्ठा हो जाती है सैंड तो इट विल टेक द फॉर्म ऑफ सैंड ड्यून्स, ऐसे टीले रेतीले टीले. बट जब सैंड हल्की होती है, फाइन होती है और वो ज्यादा दूरी तक विंड से के साथ कैरी हो जाती है तो उसे लोइस कहते हैं. एंड लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोइस इज फाउंड इन चाइना. और ये तरह लोइस कहाँ मिलते हैं हमें देखने को? चाइना में. China. Clear? मैम यस. मैम लो हिल का मतलब क्या हुआ? लो हिल मीन्स लो हिल लो हिल मीन्स मतलब मैम छोटे से रेतीले टीबे बन जाते हैं, एक तरीके से रेत के टीले छोटे छोटे हाइट के, ज्यादा ऊंचाई नहीं होती है हिल्स की. क्लियर? अब ये मैं आपको इस पीडीएफ के साथ मींस आज की जो लाइव क्लास अपलोड होगी उसके साथ इसका ये टिक द करेक्ट और व्हाटएवर ऑब्जेक्टिव पार्ट इज देयर इट विल बी मार्क्ड एंड देन बी